Sikandar, can you please start the record? Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Hamza Muhammad Khwaja and I shall be moderating this session along with Samir Asad. It is my pleasure to welcome you all to this panel discussion. But before we jump into the conversation, I want to briefly introduce ourselves and the work that we do at the Lungs Policy Research Institute. So LPRI is a student-run policy think tank that works on critiquing various aspects of Pakistan's policies. And these policies range from those related to the economy to education, even national security. So therefore, LPRI does not only provide students with um, and a platform where they could bring their classroom knowledge to something more practical, but at the same time also provides them the opportunity to give back to the society by solving various pressing social concerns such as that related to such as bonded labor. So, one of our main aims at LPRI is to spread awareness regarding pertinent policy issues. And so, in that regard, we have, selected a very pertinent topic for today's discussion, which is, the Supreme Court's verdicts regarding the Deputy Speaker's ruling and the interpretation of Article 63, subsection A. And this is an especially important topic, given its far-reaching implication on Pakistan's political landscape. So, with that said, I'll start off with introducing our panelists. Our panel comprises of an esteemed set of panelists who are amongst the most renowned lawyers in Pakistan. To begin with, we have Mr. Umar Sumru, who is not here yet, but he'll be joining us shortly. Mr. Sumru is an advocate at the Supreme Court and a partner at Via Barker Gillette. He has represented clients in commercial arbitration locally and overseas. Mr. Sumru has involved in a wide variety of cases before the High Court of Sindh, including matters relating to insurance, pharmaceuticals, customs, sales tax, intellectual property, and the National Accountability Bureau. Currently, he serves as the Honorary Secretary of the Sindh High Court Bar Council. Next, we have Barrister Taimur Malik. Mr. Malik is the founder of Quoting the Law, Pakistan's first legal analysis portal. He previously served as the executive director of the Research Society of International Law and is currently a partner at Clyde and Company, where he acts as a strategic counsel to clients across different industry sectors. Besides, he is regularly invited to legal discussions in Pakistan and is considered an authority over legal issues. So thank you so much, Malik Saab, for giving us your time and blessing us with your presence. And next, we have Ms. Noor Ijaz, who is an advocate at the High Court and holds an LLB degree from the University of London. She has worked on various notable human rights cases in Pakistan, including the Orange Line Metro Train case to provide the cultural heritage of Lahore, cases regarding the disenfranchisement of women voters in north of Pakistan, and cases to contest the scope of judicial review for decisions passed by military courts. In addition, her publications and research include um, case law trends on the freedom of speech and expression in Pakistan. Thank you, Mahmood, for taking out the time. उसके बाद हमारे साथ बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब हैं जो पाकिस्तान के एक जाने माने वकील हैं. पंसोटा साहब एडवोकेट हैं एट सुप्रीम कोर्ट और फाउंडिंग पार्टनर भी हैं अहमद एंड पंसोटा में. उनकी जो महारत है वो है लिटिगेशन के अंदर और काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बैंकिंग, क्रिमिनल, सिविल रेवेन्यू, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट, लेबर, रेगुलेटरी हरासमेंट, intellectual property और service law के अंदर. He regularly appears before the higher and the subordinate courts of the country. और वो काफ़ी मकबूल भी हैं मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पे. और इसके अलावा उनके कॉलम डॉन जैसे अखबारात में शाया होते रहते हैं. तो बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने वक्त निकाला. उसके बाद हमारे पास बख्तावर बिलाल सूफ़ी हैं जो कि एक एडवोकेट हैं एट द हाई कोर्ट और वो एक सीनियर एसोसिएट हैं एट अहमद बिलाल सूफ़ी एंड कंपनी, जहाँ पे वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर काम करते हैं. वो पहले हुकूमत को बहुत से मशवरे दे चुके हैं काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान रेलवेज, द वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी और नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी. और काफ़ी ज़्यादा ये जो मशवरे देते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही होते हैं. उसके अलावा वो लम्स में पढ़ाते भी हैं, एडजंक्ट फैकल्टी का पार्ट है एट द शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान लीगल सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान लीगल सिस्टम जैसे कोर्सेज पढ़ाते हैं. उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा लिखते भी हैं डॉन के लिए और द न्यूज़ के लिए. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप इस बहुत अहम मौजू के ऊपर जो पैनल डिस्कशन हुई उसमें आप लोगों ने शिरकत की.
ایک بات میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ وی انوائٹیڈ اندر پینلسٹ مس شمائم مس سماویہ سوری. So Miss Samavia had a personal emergency, which is why she was not able to make it. So we'll continue without her. And without further ado, I would hand it over to Sameer to start off the conversation. Sameer, over to you. Thank you, Hamza. Assalamu alaikum, everyone. I'm Sameer, and I think آج کے ٹاپک کو لیتے ہوئے I think ہم ڈائریکٹلی ڈائیو کرتے ہیں ہمارے پہلے سوال پہ جو مسٹر تیمور ملک سے میرا ہے کہ جنرلی بہت جنرل سوال ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی جمہوریت میں, سماج میں ایک کانسٹیٹیوشن جیسے ڈاکیومنٹ کی, ایک پیس آف پیپر کی ایک فنڈامنٹل امپورٹنس کیا ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے, کیا امپورٹنس رکھتا ہے یہ ڈاکیومنٹ جس کے اوپر اتنی زیادہ بحث ہو رہی ہے اور ڈسکورس ہو رہا ہے 2 مہینے سے. یہ گراؤنڈ ورک پلیز لے ڈاؤن کیجیے گا ہمارے لیے. اچھا, تھینک یو ویری مچ سمیر. انٹرسٹنگ کویسچن. ہمارے ملک میں یہ بہت سب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کو کے اوپر بہت پالیٹکس کرتی ہیں کہ جی آئین کا تقدس جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے, اور امپریشن ایک عام عوام کو اور لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ جی حرف آخر ہے جو آئین اس وقت لکھا ہوا ہے اور 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ریفر کیا جاتا ہے. یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً 2 درجن امینڈمنٹس آ چکی ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور I would say perhaps 3/4 of that 1973 constitution has been amended by these amendments. 18th amendment being, اور اس پہ شاید باقی اسپیکرز بھی بہتر بتا سکیں, خاص طور پہ پنسوٹا صاحب, کہ کتنے سبسٹینشیل امینڈمنٹس اس میں آ چکی ہیں آلریڈی. سو اس کو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, اس سے دیکھیں ایک چیز ثابت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ایک کل جماعتی ایفرٹ کے ساتھ ایک آئین بنایا جاتا ہے جس میں ایک نیشنل کنسنسس ایٹ لیسٹ آن کی تھنگ موجود ہوتا ہے, تبھی کانسٹیٹیوشن بن سکتا ہے اور بنا, رائٹ. سو لیکن اس کے بعد اگر وقت کے ساتھ یا ایک کوئی ڈاکیومنٹ آپ بناتے ہیں, دیس کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ, اور آپ کی وقت کی ضرورتوں کے ساتھ آپ کے جیسے ان کے اوپر انٹرپریٹیشن کے ایشوز آئیں گے تو جوڈیشری تو انٹرپریٹ کر سکتی ہے, بٹ پارلیمان خود قانون سازی کر کے اس کو امپروو کر سکتا ہے, اور وہ کئی حد طریقے سے کیا گیا. کئی دفعہ obviously ان امپروومنٹس کے اوپر بعد میں کوسچن مارک بھی آ سکتے ہیں. So this is important to say کہ جی constitution is the supreme law of the country, it's the grand norm, but یہ نہیں ہے کہ constitution کو کوئی amend نہیں کر سکتا, یا میرے point of view سے کہ اس کی جی purpose of interpretation نہیں دی جا سکتی. بالکل ہو سکتی ہیں یہ چیزیں, اور اگر آنے والا پارلیمان کسی چیز سے اگری نہیں کرتا اور مزید کلیریفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل اس امینڈمنٹ کو اور کلیریفائی کرنے کے لیے اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ سکتے ہیں, اور اس کو اتنا ڈیٹیل اور کلیئر کر سکتے ہیں کہ بعد میں سپریم کورٹ کے پاس یا کسی اور کورٹ کے پاس گنجائش ہی نہ ہو اس کو انٹرپریٹ کرنے کی. تو یہ میرا یہ ویو ہے اس کی. اچھا, تو اس میں ملک صاحب نے بات کی کہ پارلیمانی ممبران جو ہوتے ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں, اس میں کلیئرٹی لا سکتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سو اس میں بیلنس, مسٹر پنسوٹا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیلنس کہاں پہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کب ایک پارلیمانی ممبر نے یا ممبران نے اس میں امینڈمنٹس لے کر آنی ہے اور کب کورٹ نے انٹروین کرنا ہے, اور کہاں پہ کورٹ نے اس میں امینڈمنٹس اور امپروومنٹس لے کر آنی ہے, بیکاز دس از سم تھنگ جو ہمارے ابھی ود ان دا پاسٹ 1.5 month ہوا کہ پارلیمانی ممبران نے کچھ کہنے کی کوشش کی, کورٹس نے اس کے بدلے میں اس کو ریورس کیا یا کچھ اور کہنے کی کوشش کی. تو یہ بیلنس کہاں پہ ڈھونڈا جا سکتا ہے یا کس طرح ریکنسائل ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بلائی اور ملک صاحب نے بڑا اچھا اس کا ایک انٹروڈکشن دیا ہے. دیکھیں میرے نزدیک آئین سپریم ہے, پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم ہے اور تمام ادارے اس کے تابع ہیں, جس میں جوڈیشری بھی ہے, جو آپ کی ایگزیکٹو ہے, تمام برانچز جو ہیں they are all subordinate to the constitution of Pakistan. اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ایک سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے کہ جوڈیشری کا اپنا رول ہے, ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے, مقننہ کا رول ہے, اس سارے کے سارے رولز ڈیفائنڈ ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر آن ون تھنگ کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا, اور اس کویسچن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری ریویو نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس کا ایک ریزن ہے, کیونکہ جو آئین کا بیسک دباچہ ہے جو کہ اس کا پریفیس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عوام طاقت تر چشمہ ہے, اس کے نمائندگان جو ہیں وہ آ کر اس قانون کو بناتے ہیں یا آئین کو امینڈمنٹ کرتے ہیں 2/3 میجورٹی سے, اینڈ دیئر فور ہاؤ the constitution is obviously formed یا how constitution is amended یا اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن ہوتی ہے. اب آتا ہے عدالتوں کا رول. عدالتوں کا بنیادی رول جو ہے
वो इन एडिशन टू डिसाइडिंग सिविल एंड कमर्शियल केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पर जो है क्रिमिनल केसेस के साथ साथ वो है आइन की इंटरप्रिटेशन करना। लेकिन उस इंटरप्रिटेशन को करते करते वो किसी भी सूरत आइन को रीराइट नहीं कर सकते, आइन की जो बुनियादी स्पिरिट है उससे डिविएट नहीं कर सकते। ये 17 मेंबर जजमेंट जो हमारी मिलिट्री कोर्ट्स उसमें बड़ा क्लियरली होल्ड किया हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि आज जुडिशरी बैठ के ये नहीं कह सकती कि फौज खत्म कर दें या जुडिशरी खत्म कर दें या कोई और इदारा खत्म कर दें, उस बेसिक स्ट्रक्चर से किसी किस्म का जो आई वुड से दे कांट टेक अ डिफरेंट व्यू फ्रॉम दैट, तो देयरफॉर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन जो हाल ही में इवेंट्स हुए हैं उनकी रूह में अगर आप देखें तो डिबेट ये इग्नाइट हुई है कि जुडिशरी इंटरप्रेट कर रही है या जुडिशरी रीराइट कर रही है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जुडिशरी में पाकिस्तान में जो साबका अदवार हैं 2007 से पहले बहुत ज्यादा एक्सेसेस हुई हैं और हमारी जुडिशरी अपने असल रोल से डिविएट करके वो तमाम काम करती रही है जिसका उनसे कोई दूर नजदीक से ताल्लुक नहीं। मसलन एक दो मिसालें देना जरूरी समझता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब का जब मर्डर ट्रायल हुआ तो उनको जो फांसी दी गई वो आज तक किसी जज के पास अगर आप बैठ के उन्हीं जजेस के पास भी बैठ जाएं तो वो उसके ऊपर बहुत शर्मिंदा है। इसी तरह अगर आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मिसाल लें तो उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ जो है वो आइन को अमेंड करें, इसको इस तरह करें इस तरह करें, ये उनकी डोमेन नहीं थी। एंड आई कैन साइट सेवरल एग्जांपल्स जो कि पाकिस्तान की जुडिशरी के जो फैसले हैं वो एक बड़े शर्मनाक फैसले हैं। 2007 के बाद जुडिशरी ने जरा एक नई सिमत इख्तियार की, फिर बीच में लॉयर्स मूवमेंट के बाद की बात मैं सारी कर रहा हूँ, और हमारी जुडिशरी ने डिसाइड किया कि अपने अपने सफेयर में रहना है। फिर भी एक्सेसेस बहुत हुई और होती जा रही हैं, उसमें बेतहाशा एग्जांपल्स है जिनको मैं इसलिए देना मुनासिब नहीं समझूंगा कि वो तमाम की तमाम जुडिशरी इस वक्त इन प्लेस है, तो मैं कोई उस कंटेम्प्ट की डोमेन में ना चला जाऊं। नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ कंटेम्प्ट, बट यस आई एम सर्टेनली अफ्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि मेरा जो रोल एज तज्जिया निगार भी है मैं उससे बाहर ना लिखूं। सो यस, इन सब चीजों के तनाजुर में जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि 73 के आइन के तनाजुर में अगर आप देखें तो हर इदारे ने अपनी जो डोमेन है उससे एक्सीड किया है और वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, which includes the politicians, which includes the judiciary, आर्मी को ले लें, किसी इदारे को आप उठा लें, उसने दूसरे का काम करने की कोशिश की है जिसकी वजह से जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है that has eventually come down to such a low level कि जहां पर हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया है सर्टन करना कि यार किसका रोल क्या है, तशरीह किसने करनी है, फैसला किसने करना है, आइन किसने बनाना है, 2/3 अक्सरियत किसके पास है। So it has all become jumbled up now. ओके थैंक यू सो मच। और इसी पे लाइक मैं बिल्ड अपॉन करूंगा इट सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की। आई एम मूविंग ऑन टू मिस नूर कि अ लॉट ऑफ मेंबर्स ऑफ द फॉर्मर गवर्नमेंट सेड कि ये जुडिशियल कू था एक तरह से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे अपनी रूलिंग उन्होंने दी। सो डू यू इन योर प्रोफेशनल लीगल ओपिनियन डू यू थिंक कि ये अमाउंट करता है एज अ जुडिशियल कू, और डू यू थिंक इन दिस केस the former government was really trying to disrupt actual parliamentary proceedings or democratic proceedings, और ये जरूरी था judiciary को यहाँ पे एक step लेना? Thank you very much, Sameer. I think पहले before I come to your question, I think I just want to really emphasize कि जो आपने balance की बात की, और ये essentially tie in करता है मेरी इस ओपिनियन से कि क्या वो जो सो मोटो नोटिस लिया गया क्या वो लेजिटिमेट था भी कि नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियार है वो एसेंशियली है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिव्यू करना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखना कि वेदर और नॉट ये आइन की जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो से आपने बात की के साथ इन लाइन है कि नहीं है, और वहां से डिविएट करते हुए, और उसका एक जुमरा बना हुआ है, उसका जुमरा बना हुआ है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में फैसला कर लिया फाइनली आफ्टर डिविएटिंग ऑन वेदर और इफ नॉट कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और जब ये फैसला होगा तो उस जुमरे से बाहर अपना जुमरा बना के उस जुमरे से बाहर जाते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी इख्तियार लेती है जिसमें वो पार्लियामान के जुमरे में जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जैसे कि इलेक्टोरल प्रोसेस हो गया, जैसे कि नेशन बिल्डिंग होगी, नेशनल आइडेंटिटी का सवाल हो गया, पार्लियामानी प्रोसीजर का सवाल हो गया, वो सारे सवालात क्लब टुगेदर आपकी पार्लियामेंट के पास आते हैं, और जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को असर्ट करते हुए रीराइट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर ऐसी डायरेक्ट कर रही है रूल ऑफ लॉ के प्रोसीजर को, यानी कि मतलब ये इन्फॉर्म कर रही है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को रादर देन ट्राइंग टू बंडल इट अप और ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, उसको मैं समझती हूँ जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ मेरी नजर में एक जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में मामलात लेके
یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا پارلیمنٹری پروسیجر صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہم ڈرائیو کریں گے اس ڈیموکریٹک پروسیجر کو ایز اپوز ٹو ٹرائنگ ٹو کلیکٹ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن ریپرزینٹ کرتا ہے. دیٹ بینگ سیڈ اس ٹائم پہ شاید اس کی نیڈ, اور اس نیڈ کو لیجیٹمائز میں بالکل بھی نہیں کروں گی, لیکن شاید یہ سپریم کورٹ کی نظر میں نیڈ تھی کہ آرٹیکل ایک ایسا پروسیجر کیا گیا جہاں پہ ایک لوپ ہول نکالا گیا, جہاں پہ ڈیپٹی اسپیکر نے پہلے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایریڈیکیٹ کر کے یہ کہا کہ دیکھیں کیونکہ فورن انٹرونشن ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے, اور اسی پہ رد کرتے ہوئے اب ہمیں پریزیڈنٹ نے ایڈوائس لی ہے پرائم منسٹر سے کہ ہم نیشنل اسمبلیز کو ڈیزالو کریں. اس چیز کو واپس انڈو کرنے کا کام سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا, بیکاز اٹ واز ٹرائنگ ٹو ڈو اٹس ڈیوٹی آف ٹرائنگ ٹو essentially club together یا trying to summatify, I would say, parliamentary procedure or parliamentary process. But what happened regrettably after that, جب article 63A کی judgment آئی, وہ میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے وہاں پہ اوور ڈو کیا اپنے کام کو, اوور اسٹیپ کیا اپنی پروسیس کو, اور وہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی انہوں نے جو بھی سمیٹنے کی کوشش کی تھی ایک پوائنٹ پہ چیز, وہ ساری پھر سے واپس انڈو کر کے ایک بکھیر دیا ایک سارے پروسیس کو. اس پروسیس کو سنبھالنا نہ تو صرف مشکل ہے بلکہ in my opinion subverts every single process that this country is predicated on, subverts democracy itself in my opinion. And یہی جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ جوڈیشل کو ہے. شاید یہ فیصلہ اٹ سیلف نہیں ہے جو آپ جس فیصلے کی بات کریں ڈیپوٹی اسپیکر رولنگ کی, شاید وہ ایک ان آف اٹ سیلف جوڈیشل کو کی طرف نہ انڈیکیٹ کرتا ہو, لیکن جو سپریم کورٹ کا ہسٹوریکل پروسیس رہا ہے پچھلے 2-3 دن پہلے بھی جو رہا ہے, اور انکنسسٹنسی سے ہم نے دیکھا ٹائم اینڈ اگین یہ ہمیں ہماری ڈیموکریٹک پروسیس کو اوور ریچ کرتا رہا ہے. میں ضرور مانتی ہوں کہ دس ایکشن اور دس پروسیس آف دا سپریم کورٹ صرف آج کی بات نہیں ہے, یہ ہسٹوریکلی ایسا ہی رہا ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن کو ہارم کرتا رہا ہے ایز اپوز ٹو trying to cover for it, as opposed to trying to protect it, or as opposed to even trying to protect any provision included to control the democratic process. Thank you, Ms. Noor. اب میں مصور صاحب کے پاس جاؤں گا. سر آپ یہ بتائیے کہ مس نور نے تو یہ بتایا کہ کس طرح سے ایک ڈسٹرپشن کریٹ ہوئی ہے ان دا ڈیموکریٹک پروسیس, اور جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک طرح سے اپنی باؤنڈریز کو اوور ریچ کر رہی ہے. تو کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ میری آڈیو صحیح آ رہی ہے آئی تھنک. جی مجھے آ رہی ہے. تھینک یو فار دا کویسچن حمزہ. اچھا آپ کر لیجیے. ہاں صحیح ہے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ان کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ ڈسٹرپشن کریٹ ہو رہی ہے واقعی میں, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اسپیسیفکلی پروسیس کی بات کریں تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو ڈپٹی اسپیکر نے بھی فالو کرنا ہوتا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا انہوں نے فالو کیا؟ اگر نہیں کیا تو ان کے لیے کیا پینلٹیز ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ اکثر سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب باہر نکلے تھے پارلیمنٹ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 لگے گا اسپیکر پہ, تو آپ کے خیال میں آرٹیکل 6 کی اس کے اندر کیا سگنیفیکینس ہے؟ اور ویسے ہی جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے اس کی کیا جورسڈکشن ہوتی ہے, اس کی کیا ایز این وہ اس کی کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں جن کو وہ اوور ریچ نہیں کر سکتا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. جب بھی آپ کسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کریں, بیکاز آئی تھنک ان بوتھ سچویشنز بوتھ ود ریسپیکٹ ٹو دا کویسچن کنسرننگ آرٹیکل 63A کا جو پریزیڈینشیل ریفرنس بھیجا گیا اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا میرا خیال ہے SMC 1 آف 2022 میں ریگارڈنگ دا اسپیکرز رولنگ, وہ دونوں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں آف ون سارٹ اور another. اور جب بھی آپ کسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کریں تو آئی تھنک یو کی ناٹ جسٹ لک ایٹ دا کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ بٹ یو آلسو ہیو ٹو لک ایٹ دا سراؤنڈنگ کانسٹیٹیوشنل نارمس. اور ان نارمس کی روشنی میں آپ جب اس سائڈ پہ بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں تو مے بی یو کین assess whether or not the actions were right or wrong. I think جو نور نے بات کی, I feel I'm somewhat aligned to her view and particularly how she divided it across the two judgments. میرا ویو یہی ہے کہ جو پہلی ججمنٹ تھی ود ریسپیکٹ ٹو دی اسپیکرز رولنگ میری نظر میں, اینڈ ود مائی لمیٹڈ نالج اینڈ ادرس کین پرابلی کامنٹ آن اٹ in a better fashion. I think it's again before I say anything, I think یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیٹیلڈ آرڈر یا ڈیٹیلڈ ریزنز نہیں آئے. We only have the decision of the court, not the reason. So any comment that we are making is a bit premature. Having said that, I think وہ جو فیصلہ تھا وہ غالباً درست ہے, because اس وقت
एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई थी जहां पे स्पीकर ने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद किया बेस्ड ऑन अ स्ट्रेंज इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 5। और सवालिया निशान यही था कि जब आइन की एक शिक में लिख दिया गया है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर वोटिंग कराना लाजिम है, तो क्या स्पीकर ये कह सकता है कि मैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लीव ग्रांट करने के बाद मुस्तरद करता हूँ? So it was actually a question of enforcing a provision of the constitution. अब इसके ऊपर एक अलहदा क्रिटिसिज्म है कि आया ये स्पीकर साहब की जो जुरिस्डिक्शन है, जो उनको इस्तिस्ना हासिल है, उसके ऊपर क्या अदालत जो है वो इस तरह जुडिशियल रिव्यू में बैठ के नजरसानी कर सकती है या नहीं। इसके ऊपर मेरी नज़र में प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। एक सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला केस मौजूद है जिसमें अगेन फहमीदा मिर्जा मेरा ख्याल है उस वक्त स्पीकर थी, उनकी रूलिंग चैलेंज की गई जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाती ये मैटर। इसी तरह मेरा ख्याल है 99 में आसिफ अली जरदारी साहब वाला केस था जिसके अंदर जब वो अंडर ट्रायल थे तो उनको स्पीकर साहब ने बैठने नहीं दिया सेनेट में, बिकॉज अपेरेंटली ऑन द प्रीटेक्स्ट कि इनका एक ट्रायल चल रहा है तो ये मुनासिब नहीं है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उनको हाउस में लाया जाए। तो वो स्पीकर की भी रूलिंग चैलेंज हुई। तो अगर आप प्रेसिडेंट्स देखें तो प्रेसिडेंट्स यकीनी तौर पर मौजूद थे जिसके अंदर डिस्पाइट द एग्जेम्पशन और द इम्यूनिटी सो टू स्पीक दैट इज अवेलेबल टू द स्पीकर, वो रूलिंग्स चैलेंज की गई। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसकी जो एग्जेम्पशन या कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो उन्हें हासिल है आर्टिकल 69 में, वो है विद रिस्पेक्ट टू इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, कि कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो जाए तो हाँ वहां पे अदालत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे एक प्रोसेस जो आइन में लिख दिया गया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे होना है, उसे अगर स्कटल किया जा रहा है तो शायद सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर इंटरफेरेंस मेरे हिसाब से seems to be justified। जो 63A वाली reasoning दी गई है, to be honest I'm very surprised to hear that, to read that judgment। and जो नूर ने बात की कि I'm a bit overwhelmed and a bit surprised कि इसको कोर्ट कैसे reconcile करेगी अपने पिछले जजमेंट को जो जिसके ऊपर नूर ने जिसका हवाला दिया और जो अब उन्होंने रीजनिंग दी है। क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि किसी मिनिस्टर को किसी MNA को नहीं रोका जाएगा वोट देने से, और वहां पे ये ऑर्डर में बड़ा एक्सप्रेसली लिखा गया कि ये इनका फंडामेंटल राइट है। और जब 63A के ऊपर जब जजमेंट आई तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकता। सो ये बज़ाहिर एक अजीब सी है मेरी नज़र में इशू जो इनको शायद रिकंसाइल करनी पड़े व्हेन यू नो दे राइटिंग अ डिटेल्ड जजमेंट। So this is like my 2 cents on the 2 orders of this court. Ma'am Noor, you want to say something? Yes, I think on just contradictions of the Supreme Court, just a tiny little pointer before we move on, is also that मुझे ये strictly लगता है कि 63A का जो फैसला है, not only is it violative of fundamental rights, and that's something that I think everyone on this panel will be able to agree with, कि आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन पे, लेकिन फंडामेंटली जो टूल यूज किया जा रहा है अब मेरी नजर में, और इस चीज को मैं जरा फ्लैग करना चाह रही थी कि आर्टिकल 63 के तहत जो ताहियात ना अहली की जजमेंट पहले दी गई थी आज से 4 साल कबल, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर प्रोसेस जो कि स्टेटस को मेंटेन नहीं करता, जो कि आपके पार्लियामेंट्री प्रोसेस जिसको हम सही समझते हैं उससे थोड़ा सा भी डिविएट करता है टू align with what current needs are, उसकी पनिशमेंट आपकी ताहियात ना अहली है। और उसको टूल बनाते हुए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलती की। डिटेल रीजनिंग टू बी गिवन लेटर कि आर्टिकल 63 की यूज और ये इस डिस्क्वालिफिकेशन की यूज किस तरह से 63A के साथ टाइन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली एवरी सिटीजन in line with Article 17 has the right to form an association. Aapki cohesiveness is not the bedrock of a democracy, and that's something that I wanted to flag before we move on to anything else. A quick comment, if you allow me. Hello. Please go ahead. Go ahead. Ji sir. Okay. I think here we need to discuss these 2 cases together because I was expecting इस पर एक specific question आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, but since it has been brought up by 2 learned panelists here, I think एक बड़ी important बात है जो हमें understand करनी है अपनी basic reasoning के अंदर रहते हुए
کہ आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम, और पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना, अदालतों का काम नहीं है। स्पीकर की रूलिंग के ऊपर भी मेरा वही व्यू है। और 63A पे मैं आता हूँ, देखिए स्पीकर की रूलिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सॉरी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये कहता है कि स्पीकर की रूलिंग जो है इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, जो उसका प्रोसीजरल पार्ट है। और वैसे भी स्पीकर की रूलिंग पे अगर आप 2012 अजहर सदीक केस को उठाएं तो उसमें कहा गया है कि स्पीकर का रोल जो अब है वो एक पोस्टमैन का रोल नहीं रह गया हुआ, वो आइन के तहत फंक्शन करता है और उसने अपना माइंड अप्लाई करना है किसी भी चीज के सामने। उसके सामने एक चीज आई, उसने उस मटेरियल को समझा कि मुनासिब है और उसकी बेसिस पर उसने एक रूलिंग दी। उस रूलिंग को चैलेंज करने का नुकसान ये है कि जब आपने उस रूलिंग को चैलेंज कर दिया और ये मान लिया और हमने कहा कि जी हाँ यहाँ पर कोशर है लेकिन दूसरी जगह पर कोशर नहीं है, तो इट कांट हैपन लाइक दैट। नाउ आई मूव ऑन टू 63A। 63A में अदालत की इंटरफेरेंस नहीं है, आप खुद खत लिख के उनको पूछ रहे हैं कि 63A का मतलब ये है, क्योंकि आप खुद बहुत नालायक हैं और आप इस काबिल नहीं अपने आप को समझते कि आप 73A को, सॉरी 63A को खुद इंटरप्रेट कर लें और यहाँ बैठकर हाउस में लोगों के साथ बैठकर मशावरत करके कहें कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, जिसका मैं पूरी तरह प्रोपोनेंट हूं। मेरा ये बिल्कुल एग्री करता हूं अपने इन पैनलिस्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट को उस काम में डालेंगे एंड व्हेन दे हैव द ऑप्शन अंडर आर्टिकल 186 टू इंटरप्रेट अ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिस प्रोविजन की अभी तक कोई खातिर खा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो आपको एक नई चीज ही देंगे। दे कैन नॉट प्रोवाइड यू विद समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बिकॉज हैड इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड यू वुड नॉट हैव सॉट दैट लीगल ओपिनियन इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरी बात यह है कि जब आप 63A में उनके पास गए हैं, 63A के ऊपर आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर से शुरू होना पड़ेगा, फिर 18वीं तरमीम जो कि पाकिस्तान के बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, जिसपे रजा रबानी साहब सरे फहरिस्त थे, उनके अल्फाज, उनकी पॉलिटिकल डिबेट्स उठानी पड़ेंगी, जिसपे उन्होंने कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग का कला कमा करना है, इसको रोकना है, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। इसको हमने ये नहीं करना कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग करे तो उसको कहें थैंक यू वेरी मच, आपको डीसीट कर रहे हैं, दोबारा आइएगा, फिर दोबारा फ्लोर क्रॉसिंग होगी। सो द राइट टू वोट, द फंडामेंटल राइट टू वोट विज़ योर रिस्ट्रिक्शन टू वोट, इसका कंपैरिजन था जो 63A में हमारे बेंच ने उसके ऊपर अपना व्यू दिया। जब वो व्यू उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि आइन के अंदर एक एक्सप्रेस का गन है, राइट टू वोट को किसी ने नहीं कहा कि आप वोट नहीं कर सकते, लेकिन आप वोट करने की पोजीशन में हो तो आप वोट कर सकते हैं। लेट्स से मैं पाकिस्तान का शहरी ही नहीं हूं तो मैं कैसे पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट कर सकता हूं? सिमिलरली द मोमेंट यू डिसाइड टू क्रॉस द फ्लोर, you apparently आपका वो राइट ही नहीं रहता टू वोट, ये उन्होंने होल्ड किया है बिकॉज दो कंफ्लिक्टिंग प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशन की। वंस अगेन पार्लियामेंट को खुद करना चाहिए था, बल्कि तीसरे सवाल के जवाब में तो जो बेंच है उसने कहा कि भाई ये 10 साल और ये 50 साल और ये 100 साल वाली बातें खुद करो, बाकी 3 में भी उनको वैसे कह देते तो हमारी पार्लियामेंट ठीक हो जाती। लेकिन हमारी पार्लियामेंट की नालायकी ये है कि हमें बहुत शौक है अपने तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में ले जाने का, हमें हर चीज शौक है जी, हमारा इलेक्शन के फैसले से लेके जमीन के फैसले से लेके हमारे घर में हमने आज कपड़े कौन से पहनने, अगर हमें इजाजत ना मिली, इन चीजों को ना रोका तो जुडिशरी इस काम पे भी आ जाएगी जी आज छोटा साहब आप वेस्ट कोट मत पहने, कोट पहन के बैठे क्योंकि मजा नहीं आ रहा। सो इसी वी हैव टू स्टॉप दिस, वी हैव टू पुट एन एंड टू। सो यस, पार्शियली आई एग्री विद द पैनलिस्ट हियर, बट जब आप खुद अपने घर में, हमारे पंजाबी में एक मिसाल होती है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर नाई तो नहीं भेजा सी कि तुसी मैनू बुलाओ। सो सिमिलरली जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, बुला के कहेंगे जनाब आए हमारी चीजों का फैसला करें, फिर इसी किस्म के फैसले आएंगे सामने। If I can add something, Hamza, to Sure, this sir, before you say something. देखिए मैं काफी सारी चीजों से छोटा सा आपकी एग्री करूंगा एज ऑलवेज, और पहली रूलिंग पे हम सबका एक व्यू था और दूसरी रूलिंग पे और है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे मसला हमारा ये है कि नेशनल असेंबली का काम है लॉ मेकिंग, राइट, लेकिन अभी तक गली मोहल्ले की सियासत और थाने कचहरी की सियासत चल रही है, अगर आप अपने हलकों में जाके बात करें, और इसीलिए इलेक्टेबल्स की सियासत चल रही है। जब आप वो करेंगे और आपके पार्लियामेंटेरियन जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं वो गलियां और नालियां ठीक कराने पे के लिए बैठे होंगे या थाना कचहरी जाने पे रात के लिए बैठे होंगे, तो वो एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव काम पार्लियामान में बैठ के नहीं कर सकते। उसके अलावा नेशनल असेंबली के अंदर आपकी बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जिनका बड़ा सीरियस ओवरसाइट का रोल है, वो भी परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हमें अपना सियासी निज़ाम भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इफ वी वांट टू मेक पार्लियामेंट ट्रूली सुप्रीम इन द रियल सेंस। सो जितने आप लोग अब कर रहे हैं और होपफुली सियासत का नक्शा अगले
10-20 साल में बदलेगा और ये चीज़ें ठीक होंगी. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने बात की, रज़ा रब्बानी साहब और सब ने, बड़े सीनियर वकीलों ने उस पर कंट्रीब्यूट किया 18th अमेंडमेंट में. उसमें बहुत सारी खामियां हैं, इंटर प्रोविंशियल हार्मनी की, फेडरेशन की स्ट्रेंथ की, प्रोविंसेस के शेयर की, उसमें कैलकुलेशन के फार्मूला रिलेटेड जो प्रोविजन है, जिस दिन वो भी अब इन डिस्प्यूट अगर बिटवीन प्रोविंसेस और फेडरेशन आने शुरू होंगी तो उसमें भी इश्यूज हैं जो हमें नजर आते हैं. सो क्लैरिटी लाने की जरूरत है, पार्लियामेंट को करना चाहिए, इसमें तो कोई दो शक नहीं है कि ताकत अवाम की है और अवाम के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे, राइट. सो इसलिए वो तो पार्लियामेंट से ही चीज उस चीज को लेके आगे चलना है. बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मेरा उस पर व्यू ये है जी कि जिस तरह अगर हुकूमत काम ठीक नहीं कर रही, दे शुड बी वोटेड आउट, इलेक्शन हो दोबारा, अवाम डिसाइड करे, गलत करे सही करे, जो है उसको मौका दे. मैं इस चीज पे भी यही कहूंगा आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटिकल पार्टी या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कोई एक फैसला, चाहे वो एक साइड की पार्टी हो दूसरी साइड की हो, नहीं पसंद है, अगर हुकूमत आपकी अगली आती है या पार्लियामेंट में बिल्स पेश करें, चेंज करें, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी लेके आए, 3/4 कॉन्स्टिट्यूशन तो हम वैसे ही अमेंड कर चुके हैं. तो इसलिए हल और रास्ता, अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से मुल्क चलता रहे, राइट, हम इंटरवेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकते, राइट. अब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें बेहतर होती जाएंगी. तो ये मेरे, दीज आर माय थॉट्स. ये थैंक यू जी. हम लोग अभी आते हैं आर्टिकल 63A के ऊपर ही, लेकिन उससे पहले सिंस यू ब्रॉट अप दिस इशू प्रेसिडेंट्स का, मैं तावर साहब से जानना चाहता हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है और इसकी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है. देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी तो हमारी आई थिंक जुडिशियल हिस्ट्री का एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक ब्लैक मोमेंट है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे तमीजुद्दीन केस में एंड 200 वाले केस में सब्सिक्वेंटली जुडिशियल कूज, या आप कह रहे हैं जुडिशरी ने मिलिट्री के कूज को लीगल कवर दिया ऑन द बेसिस कि जी कॉन्सिक्वेंसेस इसके शायद ऐसे मुरतब होंगे रियासत पे कि रियासत शायद यूनिफाइड ना रहे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इट्स नेसेसरी कि हम इस कू को या इस मिलिट्री इंटरफेरेंस को रिकग्नाइज करें, जो अच्छी बात है. एंड आई थिंक जो सारे लीगल स्कॉलर्स इस पे एग्री करते हैं और जो इस प्रोफेशन से लिंक्ड हैं, मुंसलिक हैं, कि ये एक डर था गालिबन शायद कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग देगी स्पीकर वाले इशू के ऊपर, तो शायद दोबारा से ये इशू या ये एक्सक्यूज रेज की जाए कि ये नेसेसिटी की बेसिस पे ये जजमेंट दी जा रही है. लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, एक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज की, और जो मेरे नज़र में जो आईनी इसका हल था उसी की तरफ वो गए और उन्होंने स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल सही फैसला था गिवन द सिचुएशन. मैं बिफोर आई थिंक यू मूव फॉरवर्ड, आई डू वांट टू मेक अ क्विक कमेंट ऑन द डिस्कशन दैट वी हैड ऑन द आर्टिकल 63A वाली जजमेंट. आई थिंक बनसोटा साहब इज स्पॉट ऑन कि ये एक रोल रहा है, अनफॉर्चुनेट है कि हमारी तारीख में, और इसके ऊपर कई स्कॉलर्स ने, मोइन चीमा ने लिखा है, मरियम खान ने लिखा है अबाउट द जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ द जुडिशरी हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग केसेस ऑफ मेगा पॉलिटिक्स. एंड आई थिंक इसके कसूरवार तो आपके पॉलिटिशियंस ही हैं जो बार बार इन चीज़ों को अदालत के दरवाजे के सामने जाके रख देते हैं. लेकिन I think मेरा point, or maybe I don't want to speak on behalf of Noor, but I think that's what I understood from her was a critique on the Supreme Court's reasoning or the judgment that's coming out. इसके ऊपर तो हम यकीनी तौर पे सियासतदानों को कसूरवार ठहरा सकते हैं कि ये चीज़ें या ये मामलात सियासी अरीना में क्यों हल नहीं होते और अदलिया के पास क्यों आते हैं. लेकिन अगर आप वो शॉर्ट ऑर्डर देखें तो देखिए उसके अंदर 2-3 बड़ी ग्लेरिंग इश्यूज हैं. नंबर 1, आपने जिस तरह से उसको 63A को इंटरप्रेट किया, आपने पूरे आर्टिकल को ही मेरी नजर में रिडंडेंट कर दिया. आई डोंट सी हाउ अ डिफेक्शन और अ de-seating will follow once you've held that a vote will not be counted. So how can the Supreme Court, when it's interpreting a particular provision of the Constitution, make that entire article redundant? Number 2, which again I find very, very interesting, is that the Supreme Court is saying that political parties have fundamental rights अंडर आर्टिकल 17. मतलब मैंने जब तालीम हासिल की थी तो मुझे तो ये बताया गया था कि एक इंडिविजुअल के और एक फर्द के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ना कि किसी सियासी जमात के. अब हो सकता है डिटेल रीजनिंग में वो बेनजीर भुट्टो केस का रेफरेंस दें, 85 वाला या 88 वाली जजमेंट जिसमें नॉन पार्टी बेसिस पे ज़ियाउल हक साहब इलेक्शंस करा रहे थे, तो वहां पे आर्टिकल 17 की तशरीह हुई थी, बट वो भी हुई थी विद द लेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स.
تو یہ جو انہوں نے میرا خیال ہے پیراگراف 2 میں لکھا ہے, I was just very surprised to read that, you know, the Supreme Court was saying کہ we want to enforce the fundamental rights of political parties. میرے لیے بڑی عجیب تعجب کی بات ہے. اسی طرح جو کلیکٹیوٹی کو preference دینا over individual rights, again, you know, it sounds very strange coming from the highest court of the country. And the last point that I want to make here is کہ, اور پنسوٹا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, سپریم کورٹ کی ججمنٹ یا جو شارٹ آرڈر ہے, سوری, I mean we should use the right word here, وہ premised ہے on the assumption that floor crossing is always bad. میرا with a lot of respect اس پہ تھوڑا سا مختلف ویو ہے. دیکھیے, یقینی طور پہ ڈیفیکشن اچھی چیز نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے, اور اس لیے میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ ایک چیز کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ ہے اور ایک طرف کانسٹیٹیوشنل نارمز ہیں. آپ کے نارمز ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ اس طرح سے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو چھوڑ کے نہ جائیں فار ایکسٹرینیس ریزنس. لیکن یہ ازیوم کرنا کہ ڈیفیکشن ان ایوری سنگل کیس از رانگ, میری نظر میں یہ شاید درست نہیں ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ مثال یوں سمجھیے کہ کل کو لیٹ سپوز آپ کی تحریک لبیک میجورٹی پارٹی بن جاتی ہے, گورنمنٹ بناتی ہے, اور آپ کے جو ہیں خادم رضوی صاحب, ان کے صاحبزادے جو ہیں آپ کے پرائم منسٹر بنتے ہیں, اور پرائم منسٹر بن کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی میں جنگ ڈکلیئر کرتا ہوں فرانس کے اوپر, یو ایس کے اوپر, اور نیٹو کے اوپر, اور ڈینمارک کے اوپر, جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے گئے, اور آپ کو ایک ملک کو ایک ایسی مشکل میں دھکیل دیتے ہیں اور ایک ایسے اگریسو انٹرنیشنل پوسچر بناتے ہیں جس سے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے. اینڈ دین ایوری ون ان دا پارلیمنٹ ڈز ناٹ وانٹ دا کنٹری ٹو گو ٹو وار ود دا یو ایس اور ود دا ای یو اینڈ نیٹو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو کیا اس صورت میں ان کے پارٹی کے لوگ اگر وہ اپنے سربراہ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, متفق نہیں ہیں, تو کیا ان کے پاس یہ آئینی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیفیکٹ کر جائیں اور ان کو ریموو کر سکیں ایز اے پرائم منسٹر, تاکہ کوئی اور پرائم منسٹر آئے جو اس ایشو پہ کمانڈ کرے کانفیڈنس آف دا میجورٹی آف دی اسمبلی. تو اس طرح کی سیف گارڈز آئین میں ہونے چاہیے. ہم انفارچونیٹلی اس کو ویو کرتے ہیں بیسڈ آن دا پریزنٹ فیکٹس. پریزنٹ فیکٹس پہ آپ ضرور ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ جی حکومت تو ٹھیک تھی, ضرورت نہیں تھی ہٹانے کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ یو نو دیز کانسٹیٹیوشنل protections are there when the situation is going bad. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مختار صاحب. اور اسی لائک ریزننگ پہ میں آتا ہوں اگلے سوال میں. آئی ایم موونگ آن ٹو مس نوری, اب آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. تھوڑا سا ایک میں ڈائریکشن سوال کو یہ دینا چاہوں گا کہ ابھی بات ہوئی بہت زیادہ کہ ہم بار بار جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کو جا کے دستک دیتی ہے کہ ہمارے مسئلے آ کے سالو کرو, اور یہ چیز پارلیمنٹ میں اسینشلی ہونی چاہیے. تو ایشو ایک جو ہم نے دیکھا ریسنٹلی اس کے اس وقت پارلیمنٹ میں آپ کی بوتھ نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز میں جو میجورٹیز ہیں وہ بہت تھن لائنز پر بنی ہوئی ہیں. تو کیونکہ میجورٹیز اتنی تھن لائنز پر بنی ہوئی ہیں اور اتنی ویک میجورٹیز بنی ہوئی ہیں, تو اکثر پارلیمنٹ کے اندر یہ مسائل سالو کرنا کافی مشکل بن جاتا ہے ڈیو ٹو دی کائنڈ آف پالیٹکس دیٹ وی ہیو. جیسے گلی محلے کی پالیٹکس کی بات ہوئی, تو دین ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ اور سی پارلیمنٹری سپریمیسی ایور کمنگ ڈاؤن جہاں پہ آپ کی کولیشنز ہی اتنی ویک لائنز پر بنی ہوں. Thank you for this question, and I think that's exactly what I wanted to say. I spot on agree with Bhaktavar, but I'll come to reasons why in a bit. But یہ جو بات ہے کہ coalitions اتنی thin line سے بنی ہوئی ہیں اور coalitions اتنی weak ہیں, اور اس طرح سے آپ کا parliamentary procedure ہی اتنا گندا ہے کہ کوئی چیز کوئی کر ہی نہیں پا رہا, اور اسی لیے سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑ جاتا ہے. میں اس لائن سے with all due respect agree نہیں کرتی, and simply for the reason that the Supreme Court of Pakistan is not in any way duty bound to take on the process of the parliament or to replace their own processes with the process of the parliament. yahan kahin ki hum aapko baby feed karte hain, aaye aap apne sare masail hamare darwaze pe leke aaye to hum aapko اسپون فیڈ کرتے ہیں, آپ کے مسائل حل کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا آئینی طور پہ اس طرح کا بالکل بھی کوئی رول نہیں ہے. انفیکٹ سپریم کورٹ نے بہت سے ایسی پروسیجرز ہیں, بہت سے جب ایسے اوقات میں جب سپریم کورٹ نے باو آؤٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر بھی دیتی ہے. حنیف عباسی کے 2 ڈیسیژنز تھے, ایک میں انہوں نے کہا تھا حیات نہ اہلی ہے, اور ایک میں انہوں نے کہا ہم تو انٹرفیئر ہی نہیں کریں گے. ڈسٹنکشنز ڈرا کرنا اور سپریم کورٹ کا ایک ہسٹوریکل جو مسئلہ رہا ہے کہ جہاں انوالومنٹ شو کرنی ہے تو کرنی ہے, اور جہاں پہ نہیں کرنی, جہاں پہ کنوینئنٹ نہیں فیل ہو رہا تو ایٹ دا رسک آف کنٹیمپٹ نہیں انٹرفیئرنس شو کرنی ہے.
is something that I feel happened in this instance as well. हाँ बिल्कुल पार्लियामेंट रेफरेंस लेगी, लेकिन बहुत से इंस्टेंसेस में सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे रिफ्यूज कर देती है, इट कुड हैव वेरी इजीली, जिस तरह से थर्ड क्वेश्चन पे उन्होंने कहा कि हम नहीं आंसर करेंगे, वो इसको भी कर सकती है रिफ्यूज. मेरी नजर में आज भी सुप्रीम कोर्ट ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकती है, क्योंकि हिस्टोरिकली जितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं की, Pakistan has taken a hit. The supremacy of the parliamentary procedure in Pakistan has taken a hit. जब आपने state versus 200 decide किया, जब आपने आसमा जलानी versus Pakistan was a good decision, state versus 200, Nusrat Bhutto case, NRO case, जितने भी आपने ऐसे cases decide किए, which were done in light of judicial overreach, जहां पे आपने एक ऐसा डॉक्ट्रिन जिसका फाउंडर ने खुद कहा कि गलत इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, had said, आपने जब ऐसा डॉक्ट्रिन पाकिस्तान में इन्फोर्स करने की कोशिश की जो कि हर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को रद्द करता था, तो आपने एक बहुत सी बड़ी गलती को पैदा किया. और आज भी पाकिस्तान की जुडिशरी उस गलती से सीखी नहीं, आज भी उसी के साथ खेल के आज हमारी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इसलिए नीचे दब चुकी है क्योंकि हमने कभी उसको ग्रो करने की इजाजत ही नहीं दी. हमने फ्रॉम द वेरी आउटसेट उसको दबा के रखा. एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट टुडे if गली मोहल्ले की सियासत हो भी रही है, अगर गंदी सियासत हो भी रही है, it is because of the complacency that is afforded by the Supreme Court to the Parliament by taking on the duty in the trichotomy of powers that the Parliament has. That being said, I think coming back to exactly what Bakhtawar was saying and the reasons why I agree with him, ke pehli cheez, and I would really like all students of jurisprudence and constitutional law to go to the Constitution of Pakistan and read Article 17. बहुत वाज़े तौर पर, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत clearly Constitution में लिखा हुआ है every citizen. Article 8 that prefaces the fundamental rights chapter also discusses and is also prefaced in light of individualism. The concept of individuality is what the fundamental rights chapter in Pakistan is predicated on. और उससे आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर आज अपने किसी फैसले को लेजिटिमाइज कर रही है फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर, और वो भी उसको एक कलेक्टिव रीडिंग देते हुए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बात को फ्रॉम द वेरी आउटसाइड सपोर्ट नहीं करती. और ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो 1973 से कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के तहत आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में पाए गए और रिटेन किए गए. तो आज उसको चेंज किसी ने नहीं किया, आज उसका खेला किसी ने नहीं है. खेला सिर्फ है अगर आज इस हक के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जुडिशरी ने है बाय मेकिंग इट अ कलेक्टिव राइट, सेइंग कि पॉलिटिकल पार्टी की कोहेजन ही जो है कि साथ जमे रहना पॉलिटिकल पार्टीज का ही एक फंडामेंटल राइट है उनकी, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल ही गलत रीडिंग है. फ्लोर क्रॉसिंग and party changing is a fundamental right, is what Article 17 is about. Every person has the right to form an association, every citizen having the right to form an association in line with what their political beliefs are, is exactly the spirit of Article 17. And the Supreme Court rewriting that to say anything otherwise is simply not in the spirit of of the Constitution itself, B is not even supported by the most basic reading of the Constitution, and C is something that cannot be supported by any I think political party or anyone else, because ये सबको harm करने आएगी वापस एक चीज. तो essentially मेरा सिर्फ ये व्यू है कि ठीक है डिटेल रीजनिंग अभी आएगी और शायद अभी हम इतने कमेंट्री नहीं दे सकते इस पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की जो रीजनिंग दे रहा है उसको मेंटेन करने की, I don't think that it is supported by fundamental rights. Article 68(3) की textualist reading भी सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग को अडॉप्ट और तस्लीम नहीं करती, एंड शायद अपने डिसीजन में वो जिस तरह भी इसको लेजिटिमाइज करते हैं, लेकिन इन रिव्यू या एक अगर लार्जर बेंच जो माइनॉरिटी डिसीजन है कि पार्लियामेंट नीड्स टू डिसाइड दीज मैटर्स, पार्लियामेंट नीड्स टू डिसाइड 63 ऑन व्हाटएवर बेसिस, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है रीराइट करना लॉ, और ना ही काम है उसको आगे बढ़ाना. तो ये एसेंशियली काम एंड पे पार्लियामेंट का है, एंड आई होप दैट द सुप्रीम कोर्ट रियली टेक्स दिस इनटू कंसिडरेशन at some stage, at a more, I suppose with a larger bench or in review. This decision is simply not supported by law, exactly for the same reasons that Bakhtawar pointed out. It does not support a democratic process, the democratic process that Pakistan needs and has suffered from the lack of. चलिए हमें ये तो सबको क्लियर हो गया है कि why was a good addition to the panel discussion.
right? So Thoda sahab, aapka, your hand is up. You want to go first? I have जी to सर, give it a मेरी few minutes as well. जी, आप दो तीन बातें. एक तो तैमूर साहब ने बड़ी अच्छी बात शुरू में की थी कि जो हमारे सियासतदान हैं, इनको जो बुनियादी काम है वो करने से कासिर हैं और वो गली मोहल्ले की सियासत और सोलंग और ये वो सारी चीजों में मसरूफ है. उसका बुनियादी जो रीजन है वो आर्टिकल 140A का नॉन इम्प्लीमेंटेशन है. जब आप लोकल गवर्नमेंट इन्फोर्स ही नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट जिसका काम ये है गली मोहल्ला सियासत कचहरी और आवाम को डायरेक्टली अपनी बेनिफिट करना, तो फिर ऑफ कोर्स एमएनएस एमपीएस को सारा काम करना पड़ता है. कमिंग ऑन टू 63, व्हाट द पॉइंट दैट नूर जस्ट मेड, आई वुड बेग टू डिफर हियर. व्हाई? बिकॉज जो आर्टिकल 17 है वो तो खैर इट सेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ. यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड बाय नन अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, 63A. अब 63A की रीडिंग जो है वो भी बड़ी जरूरी है. उसमें भी दो तीन बातें. एक तो है मेंबर वोट्स, abstains from voting, and most importantly changes his political party. अगर हम इन तमाम पैनल में से ही पूछ लें तो हर आदमी का डिफरेंट व्यू होगा चेंजिंग द पॉलिटिकल पार्टी. एग्जांपल मैं दूंगा राजा रियाज साहब की. वो उठ के जाके दूसरी तरफ बैठ के फिर कहा मुझे पीएमएलएन से टिकट मिल गई. लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं और हमारी जो बाकी सारे लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, अभी आपने पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं की. पॉलिटिकल पार्टी आप उस दिन चेंज करेंगे जिस दिन आप पीएमएलएन की टिकट से इलेक्ट होके हार आपको डाल जाएंगे. फिर रीजनिंग आएगी नहीं, जब हार डाल जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है, आप पहले ओथ ले लेंगे. बात ये है कि ये जो 63A में सबसे प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है वो है चेंजिंग अ पॉलिटिकल पार्टी. उसकी कोई डेफिनेशन कानून और आइन में अभी तक मौजूद है ही नहीं. दूसरा, अगर आप 18वीं तरमीम की लेजिस्लेटिव इंटेंट उठा के देख लें, हम बिल्कुल होनी क्या चाहिए वो मैं अपने साथियों से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जी नहीं होना चाहिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन. और रिस्ट्रिक्शन बाय एंड लार्ज है भी नहीं, एक्सेप्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस एंड थर्डली मनी बिल. उसके अलावा तो रिस्ट्रिक्शन है ही कोई नहीं, क्योंकि वो आपका एक जॉइंट मैनिफेस्टो होता है जिसके ऊपर आप कंटेस्ट कर रहे होते हैं और जब ज्यादातर फ्लोर क्रॉसिंग होती भी वहां है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप 63A की लेजिस्लेटिव इंटेंट उठा के देखते हैं तो जगह जगह रजा रब्बानी साहब ने और इन तमाम लोगों ने कहा कि इस चीज को रोकना है. मतलब ये नहीं कहा कि इसको रेगुलेट करना है, इसको तरीके से इस तरफ लेके जाना है. एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बख्तावर साहब का, जिसको मैं समझता हूं अल्लाह करे डिटेल रीजनिंग में उसको एड्रेस करें, कि अगर आपने सिरे से ये कह दिया है कि वोट हो ही नहीं सकता और ये वोट गलत है, तो डी सीटिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया? दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई थिंक द मेजॉरिटी वी विल एड्रेस दैट. इवन आई एम आई डोंट हैव वर्ड्स टू एड्रेस दैट बिकॉज ऑफ कोर्स इस वक्त जो हमारी गिवन जूरिस्प्रूडेंस है उसमें ये चीज थोड़ी सी इज प्रॉब्लमैटिक. बट यस, जो समझ आती है 63 है, वरना 63 का आइन में कोई काम नहीं. जिस तरह 62 और 63 को डाला गया और जिस तरह वो इस्तेमाल किया गया हमारे सामने है. और एक और बात, हमारे सिटिंग सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब से मेरा सवाल है कि आप ये पिटीशन क्यों लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि नाअहली जो है वो लाइफ नहीं होनी चाहिए और होनी चाहिए? ये काम आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं करवा सकते? अब तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप ही गवर्नमेंट से ये चीज डिसाइड करवाएं. और मेरे नजदीक मैं इस चीज का हामी हूं कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर जो मर्जी करे उसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. अल्लाह ताला की जात भी माफ कर देती है हर बड़ी से बड़ी खता को. तो एक चीज पर आपने उसको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो नवाज शरीफ हो, वो जहांगीर तरीन हो, वो कोई भी हो. The question is very simple. You give them chances. 5 साल लगा दें, 2 साल लगा दें, 10 साल लगा दें, but give him a chance to come back into power again. ये वो unreasonable restrictions हैं आइन की भी और लीगली भी जो आप आर्टिकल 17 को तंग करती हैं. 63 is problematic and I think अगर हमारे पार्लियामेंट के अंदर इतना दमखम है तो मैं तो उन लोगों में से हूं जो कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और आपके पास पावर है. ये दुनिया की जो पढ़ी लिखी डेमोक्रेसीज है उसमें ये चीज हुई है और होती है. आप करें, आप कहें जी 63A का जो ओपिनियन है बिल्कुल ठीक नहीं है और हम इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं. और ये है वो, जिस तरह कहा था, ये है वो जराए, तो ये है वो चीजें जहां पर आप जो है बात करें. दूसरा 68 और 69 को डिस्कस करना बहुत जरूरी है. हमें 69 के ऊपर बहुत तकलीफ है कि जी स्पीकर की रूलिंग को ऐसे करें, रेगुलेट करें, वो ये बात नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. 68 जो है मैं उससे बुनियादी तौर पे इख्तलाफ करता हूं. देखिए 68 की वजह से आज आपको 4 वकीलों को बिठाना पड़ा है क्योंकि वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम जुडिशरी के बारे में क्या बात करें. क्यों नहीं हम बात कर सकते जुडिशरी के बारे में नेशनल असेंबली में? अगर कोई नेशनल असेंबली का मेंबर खड़े होकर जुडिशरी के खिलाफ तकरीर करना चाहता है मुहज्जब अंदाज से, वो क्यों नहीं कर सकता जी?
क्योंकि आइन में लिखा हुआ है जी उनके स्पोक्स पर्सन कोई नहीं होते। 68 को हम बड़ा जबरदस्त इन्फोर्स करते हैं, 69 पे हम कहते हैं नहीं जी स्पीकर तो एक बेशरम सा आदमी होता है, आमतौर पे गरीब आदमी होता है, वो इलेक्ट हो के आया है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, तो उसके खिलाफ अब जौन सी मर्जी जजमेंट दें। ये 60 और 69 में भी हमें हिपोक्रेसी खत्म करनी है, या उसको एब्सोल्यूट दें या फिर उसको कहें कि जी हम जुडिशरी के बारे में भी अच्छी और मुनासिब बात कर सकते हैं, जिस तरह की अभी 63A पे हम तमाम का एक डिफरेंट व्यू है, लेकिन एक कंसेंसस जरूर है कि पार्लियामेंट का ये काम है। अगर ये तकरीर आप सुबह नेशनल असेंबली में खड़े होकर करेंगे तो अगर हम में से कोई भी मेंबर होगा तो वो फिर शाम को लम्स में नौकरी ढूंढता फिरेगा। Thank you, sir. But before I coming to Taimur Malik साहब, एक छोटा सा message है for the audience. We'll be having a question and answer session towards the end. So if anyone, any of you have any questions, please note them down. उसके बाद मलिक साहब आपसे एक तो मैं ये पूछूंगा कि अगर हम कंसोलर साहब की बात देखते हैं कि पार्लियामेंट को एक्ट करना चाहिए, क्या आपके ख्याल में प्रैक्टिकली फीजिबल होगा भी है? अगर नहीं होगा तो आपके ख्याल में उसका क्या अल्टरनेटिव है? और दूसरा ये कि जो 63A की रूलिंग है उसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं एट ए पॉलिटिकल लेवल? क्योंकि अगर हम पंजाब में देखते हैं तो वहाँ पे मेजॉरिटी लूज कर दी है हमजा शहबाज ने, तो आपके ख्याल में आगे प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू होगा और फेडरल लेवल पे भी इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, दो तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं, कई बातें तो नूर ने फिर छोटा साहब ने कर दी हैं। मैं ये कहूँगा कि देखें हम जहाँ तक उस ऑर्डर को देखते हैं तो उसमें एक तो उन्होंने ये किया है कि जो फंडामेंटल राइट कलेक्टिव है ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इट टेक्स प्रायोरिटी ओवर द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी डिटेल जजमेंट में मेजॉरिटी व्यू ऑब्वियसली वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग इट एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ कि वो उसकी प्रॉपर बेसिस और रीजनिंग क्या होगी, राइट। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और क्या ये बात हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के सिनेरियो तक लिमिट कर रहे हैं कि इसको हम फिर बाकी अपने लॉ की डायमेंशंस में और एक कलेक्टिव अगेंस्ट वर्सेस इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स में कोई नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व होने जा रही है? तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी सीन। दूसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये हम वोट काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई होंगे और ड्यूरेशन जो है ये पार्लियामेंट डिसाइड करे। तो उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया है, लेकिन जो अभी वाले जिनके ऊपर चीज अप्लाई करेगी उसके बारे में कौन फैसला करेगा, ये भी आई होप डिटेल रीजनिंग में आएगा और फिर पार्लियामेंट को इसमें करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द योर क्वेश्चन कि जी क्या प्रैक्टिकली फीजिबल है कि नहीं है, तो आई थिंक देखिए हम जहाँ ये थिन मेजोरिटी की बात करते हैं, आई डोंट नो आप में से कुछ को याद हो कि ना हो, बट व्हेन आई वाज इन टीन्स तो हम देख रहे होते थे कि जापान में और इटली में, टू गिव टू वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, हर 6 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा होता था। उनकी डेमोक्रेसी को तो कोई खतरा नहीं हुआ, आज भी चल रही हैं वही उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप 90s की हिस्ट्री ट्रैक कर लें इन दो मुल्कों की, अर्ली 2000s की भी परहैप्स एज वेल, एंड यू विल सी दिस ट्रेंड। सो चेंज तो हो सकता है और मामले आगे चल सकते हैं। हमारे मुल्क में अब आई थिंक जहाँ पे हम खड़े हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी लेके आनी है, तो वन साइड ऑफ द डिवाइड विल नीड टू गेट a majority at least, and ideally a 2/3 majority, in order to then be able to come and do some legislative work. और हम इस चीज से भी निकले, हम कोई भी हुकूमत हो वो ऑर्डिनेंसेस का भी बड़ा बेदरीगा इस्तेमाल करते हैं। वो एक अलग डिबेट है कि जी ऑर्डिनेंस क्या है, एक्ट क्या है। आप में से जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको उसकी समझ होगी, बट nobody can really favor legislation through ordinances all the time. ठीक है, so it has to be used in a very specific for a very particular purpose. तो आई थिंक पॉलिटिक्स विल डिसाइड कि पार्लियामेंट ये कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, बट आवाम को ये समझ होनी चाहिए कि जब आप किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, और आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगर तो हमारे इंडिपेंडेंट बहुत जीत रहे होते या कोई और चीज, यहाँ पे मैं फ्रॉम अ पॉलिटिकल थॉट में ये is I tend to agree more with the majority judgment, because see the thing is कि यहाँ पे आप वोट लेके आए हैं एक पार्टी की टिकट के ऊपर, राइट, एक पार्टी के व्यू के साथ। एक व्यू है नवाज शरीफ की पार्टी का या शहबाज शरीफ की, एक व्यू है बिलावल भुट्टोज का और जरदारीज का, और एक व्यू इमरान खान का, कुछ इस्लामी जमातों का। आपने अगर टिकट को किसी पे वोट दिया, आपने उस इंडिविजुअल को नहीं दिया, एक्सेप्ट विद एक्सेप्शन, आपने उस पार्टी को वोट दिया, राइट। सो आप पार्टी का बोझ भी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि अवाम ने वो आपको इलेक्ट करके भेजा है टू रिप्रेजेंट दैट पार्टीज व्यूज एंड दैट पर्टिकुलर constituencies concerns as well. So ये इसका बैलेंस कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि एक आम वोटर का भी राइट हो रहा हो और उसमें फिर जो पार्टी के राइट्स उससे एफिलिएटेड एसोसिएटेड है उनका क्या करना है।
So हमें बड़ा कुछ देखना पड़ेगा. हमें maybe we need to bring reforms in in relation to how we conduct elections. Obviously वो एक बड़ी debate बात थोड़ी देर बाद कहा जाता है जी presidential system ले आए. तो लोगों को हमें ये समझाना पड़ता है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आ जाएगा तो ये तो नहीं है कि आपका पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा. यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम जरूर है, लेकिन प्रेसिडेंट भी फंस जाए अगर उसकी सेनेट और कांग्रेस में मेजॉरिटी ना हो. और कई दफा उनका द स्टेट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल इन द यूएस एज वेल कि जो इक्विवेलेंट ऑफ मनी बिल्स कांट बी पास बिकॉज दे डोंट एग्री, द हाउस डजंट एग्री विद द प्रेसिडेंट्स अप्रोच. सो तो ये है, सो ये तो रहेगा, लेकिन मे बी वी नीड टू इम्प्रूव थिंग्स. और let's hope for the best. I have to leave, as I said कि 8 बजे मुझे भी जाना है, तो but I hope कि आपका Q&A session अच्छा चले, and I hope Bakhtavar and Noor stay for this and to the extent Panchota साहब has said. Thank you very much everyone. मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि अगर जल्दी से हम 2-3 सवाल ले लें तो मैं भी साथ ही निकल जाऊं, बिकॉज मेरी भी एक कमिटमेंट है. आज आपको पता है पॉलिटिकल हालात जरा गर्म है, तो हमें भी मशवरे के लिए तैमूर मलिक साहब के साथ बुलाया जा रहा है कहीं ना कहीं. I think शिफ्ट कर जाते हैं हम Q&A पे. I think 2 हाथ ऑलरेडी रेज्ड हैं. सो एजाज आप पूछ लें अपना सवाल. सिकंदर आई थिंक वो आपको परमिशन देनी पड़ेगी. जस्ट अ मिनट. एजाज आई थिंक आप अनम्यूट कर सकते हो, आप सवाल पूछ लो. मेरी आवाज आ रही है? आ रही. सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया. इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. मेरा नूर साहिबा और बख्तावर साहब से एक सवाल है. आप लोगों ने बात की कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है इट शुड बी अलाउड क्योंकि एवरी पर्सन हैज दिस राइट टू डिसेंट, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री कि एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू डिसेंट. लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके तनाजुर में देखें तो चूंकि यहाँ पर चंद एक गैर सियासी कुव्वतें हैं जिनके जो कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करती हैं और उसकी बिना पर ये जोड़ तोड़ की सियासतें होती हैं. जैसे हमारे पास शांगा मांगा की एग्जाम्पल है. हमारे पास थोड़ी रिसेंटली 2019 में जो बिल 2019 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था सादिक सिंजरानी साहब के खिलाफ, उसमें जो कुछ हुआ हम सबको पता है. तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज है, डज दैट वारंट अ जस्टिफिकेशन फॉर दीज फ्लोर क्रॉसिंग लॉज, या फिर आप समझते हैं कि नहीं ये लॉज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है? Izaz, that's a fantastic question. Noor, I think we can answer this later because Pansota साहब ने जाना मेरे ज़हन में है कि पहले वो सवाल अगर जो हमारे मॉडरेटर्स है ले लें that are addressed to Pansota साहब, so then he can leave and then me and Noor can take questions at the end and we'll respond to you, Izaz. Don't worry. Thank you. Sir. Perfect. So guys, जिसका लाइक पहले पंसोटा साहब से सवाल है, काइंडली आप लोग अपने हाथ खड़े कर लें ताकि वी कैन सिलेक्ट. ठीक है. ओके, सो मोहम्मद हयात आप पूछें अपना सवाल. जी अस्सलाम वालेकुम. पहले तो जी आप सबका बहुत शुक्रिया. एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो मेरा जो सवाल है वो वैसे तो है तो सबसे और ख़ास तौर पर पंचोटा साहब से है. एक तो चीज़ जो मतलब कि एक नज़र आ रही है जिस तरह कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं और एक तासुर मिल रहा है ज़्यादातर कि जिस तरह की बेंच की तश्कील हो रही है, जिस तरह बेंच बन रहे हैं, उसमें एक तासुर ये मिला जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस की जो भी बेंच बनते हैं इनमें उनको इग्नोर किया जाता है. मतलब अब जो मोस्ट सीनियर जजेस इनके अलावा हैं, मतलब चीफ जस्टिस साहब के बाद जो जस्टिस कादी फरीसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, इनके अलावा 2-4 जजेस और हैं, तो इनको इग्नोर किया जाता है, एक तासुर मिलता है. और दूसरा एक सवाल ये मेरा कि आपको लगता है कि ये सचमुच इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जजेस के बीच में कुछ डिविजन्स हैं, या फिर ये सब कुछ एक मतलब एक मीडिया एक गलत चीज को दिखा रहा है कब से, और फेक न्यूज है जो सोशल मीडिया पे चलती है इन पर्सनैलिटीज के लिहाज से. एक ये सवाल है. और दूसरा मेरा सवाल ये है कि 184(3) का जो सुओ मोटो की पावर है, क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर भी रेगुलेशंस लगाने की जरूरत है? मतलब अभी हाल ही कुछ 4-5 साल में हम देख रहे हैं कि 184(3) का जो इस्तेमाल है
उससे भी एक ये तासुर मिलता है कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को इसको फायदा पहुंचाया जा रहा है और दूसरी पार्टी को बिल्कुल ही साइड लाइन किया जा रहा है। एक ये भी तासुर मिले 184(3) के लिहाज से, मतलब अगर अभी आप इस तरह पहले फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट को हर चीज अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने भेज देती है, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों तरफ से, मतलब जो बॉल है वो दोनों तरफ से एक चल रही है, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट भी है वो भी 184(3) का इस्तेमाल करके ऐसे मतलब चीजों पे सुओ मोटो ले रहा है जो उनका इख्तियार में नहीं आती, एग्जीक्यूटिव का इख्तियार। तो इन दोनों सवाल मैं आपका पहला सवाल जो है वो आपने मुझे जो बात की कि जो बेंचेस की तश्कील के लिहाज से, देखें वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी एक जजमेंट में ही ये चीज़ क्लियर की थी कि बेंचेस की तश्कील का टोटल इख्तियार उनके पास है, वो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। चीफ जस्टिस जितने बेंचेस की तश्कील कर रहे हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, वो जो नजर आ रहा है वो ये करते हैं कोशिश कि तमाम प्रोविंसेस से एक एक जज जरूर हो, ताकि एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट जरूर है। जहां तक सीनियर मोस्ट की आपने बात की है, मैं बुनियादी तौर पे काजी साहब को उन तमाम केसेस में इंक्लूड करने के हक में इसलिए नहीं हूं जहां पर इमरान खान या पीटीआई का मामला है कि वो ऑलरेडी एक बायस है जो चल रही है, जो चाहते या ना चाहते हुए भी वहां एग्जिस्ट करेगी, अगर इमरान खान साहब की तरफ से भी और उधर से भी, दोनों साइड से। तो आई डोंट थिंक सो ही शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स। मंसूर अली शाह साहब का आपने नाम लिया, वंस अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, बट अगर आप देखें तो टॉप 3-4 जो है वो तो ऑलमोस्ट हर पिटिशन में बैठे होते हैं। बट येस, वंस अगेन वी आर नोबडी टू सजेस्ट, उनका इख्तियार है और इख्तियार शुड बी एक्सरसाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। दूसरी बात आपने ये की है, जहां तक मुझे आपका सवाल इस वक्त याद, आपके 2-3 सवाल थे, एक आई थिंक बेंच से रिलेट करता था, दूसरा आपका सवाल रिलेट करता था कि जो सीनियर मोस्ट है। आई थिंक आपका तीसरा सवाल जो है मिस आउट कर गए, अगर आपको थोड़ा सा रिपीट कर दें क्विकली। 1843 सुप्रीम सुओ मोटो पे मेरा जो व्यू है वो बड़ा क्लियर है कि सुओ मोटो इज अ बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर। सुओ मोटो का इख्तियार नहीं होना चाहिए आइन में, और अगर है तो एटलीस्ट 7 जजेस शुड डिसाइड कि किसने सुओ मोटो लेना है, ताकि उस इशू के ऊपर एक 7 जजेस का कंसेंसस हो और फिर सुओ मोटो का इख्तियार इस्तेमाल किया जाए। और अगर आपने एग्जिस्टिंग सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू करना है तो आप मिसिंग पर्सन्स पर करें, आप उन लोगों पर करें जो गायब हैं, आप उन लोगों पर करें जिनके बुनियादी हकूक प्रॉपरली अफेक्ट हो रहे हैं। इन चीजों पर मेरा ख्याल 1843 जो है उसका इतलाक ज्यादा होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल मैटर्स, उस पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को नहीं डलना चाहिए। नो डाउट बड़ी ज्यादती कर रही थी गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के मामला में और ये 1843 पर, बट मैं स्टिल समझता हूँ कि दैट डज नॉट वारंट कि कोई भी उसमें इख्तियार इस्तेमाल हो। बट येस, सुओ मोटो के बुनियादी तौर पर मैं खिलाफ हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि सुओ मोटो का इख्तियार होना चाहिए। Before moving on to the next question, दो messages हैं for the audience. एक तो ये कि अपना सवाल प्लीज छोटा रखें, और दूसरा ये कि if you don't want to directly communicate your question, you can alternatively type it in the chat box as well. तो शयान, अगले आप। अच्छा, through the situation, वो पहले chaos के थ्रू भी गई है and they have had similar experience like us. तो एक टाइम पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक ही बिल्डिंग में थे, एंड नाउ अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में या उनके जो भी एक्शंस हैं उसमें कोई अमल दखल नहीं होता बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो हाउ कैन पाकिस्तान इवॉल्व टू सच स्टैचर कि वो कोई पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस ना हो बाय द सुप्रीम कोर्ट? ये इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं as a nation or as a parliament? इसका एक ही तरीका है जी कि आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, अपने टाइम पर हों, जिसके इलेक्शंस हों वो 5 साल पूरे करे। उन 5 सालों के बाद अवाम ये फैसला करे कि अगले लोग कौन आने हैं, ना कि रियासत के इदारे फैसला करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, ना कि एस्टैब्लिशमेंट फैसला करे। कि जब आप सिलेक्ट करते हैं या किसी चीज के अंदर अपनी इंटरफेरेंस करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आप ब्लेम करने के लिए उन्हीं सियासतदानों को करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उसमें बहुत सारी कुव्वतें होती हैं। आप यू लेट देम इवॉल्व। दुनिया के सारे निजाम, दुनिया का कोई साइंटिफिक प्रोसेस, कुछ भी जब ग्रेजुअली इवॉल्व करता है तो इट रीचेस अ स्टेज जहां पर वो प्योरीफाई हो जाता है। कोई भी निजाम शुरू में ठीक नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता है। और पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता होता है कि जी डेमोक्रेसी तो काम क्यों नहीं करी? वो इसलिए काम नहीं करी कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेसी का एसेंस है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी की बुनियादी शराइत हैं जिन पर इसको खड़े होना चाहिए वो है ही नहीं। सो यू लेट इट इवॉल्व, इसको टाइम दें। जिसमें स्पीकर्स रूलिंग का फैसला एक था, जिसमें मैं तो 63A को
को भी कहूंगा, ये सब चीजें पार्लियामेंट डिसाइड करें. जब आपके सामने 4-5 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस आएगी, आप खुद ही उनको वोट आउट करेंगे और ये प्रोसेस शफाफ हो जाएगा और हर इदारा अपने काम में और उसमें रहेगा. और न्यूट्रल जो है वो हर इदारे को आज से डिसाइड होना है कि हमने होना है. ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड गियर लगा के तो थोड़ी देर बाद आप न्यूट्रल हो जाए, तो उसका फिर नुकसान होता है. जी अली और फिर एजाज का भी मेरे साथ. And I'll take the last question. I'll take the last question and then I'll leave. जी, thank you. Okay, जी बिल्कुल सर. आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने किसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपने कहा था कि आपका बिलीफ ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी ओवर रूल कर दे. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है कि ये आपका जो सा व्यू है ये कहाँ तक एप्लीकेबल है दो कंटेक्स्ट के अंदर. एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे जुडिशरी टोटली सेपरेट है. तो वो क्या अगर पार्लियामेंट ओवर रूल करना शुरू कर दिया पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करेगा. दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट 2015 के अंदर 2/3 मेजोरिटी को पहले से ही ओवर रूल कर चुकी है. जो उनकी जजमेंट थी अबाउट द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 2/3 मेजोरिटी को भी ओवर रूल कर सकते हैं जजमेंट्स को वो अमेंडमेंट्स को ओवरव्यू करके. तो ये कहाँ तक एप्लीकेबल है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करे? मैं आपका सवाल समझ गया. देखिए 17 मेंबर जजमेंट जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, उसके अंदर ये होल्ड हुआ था कि आईनी तरमीम जो है उसको आमतौर पर स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज पार्लियामेंट व्हिच हैज डन दैट. सो वो पार्लियामेंट की आईनी तरमीम उस सिचुएशन में स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है जहां पर वो आईनी तरमीम बुनियादी ढांचे के खिलाफ है. मसलन आज अगर आइन में तरमीम हो जाए कि सुबह सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें, तो ये नहीं हो सकता. अगर आइन में तरमीम हो जाए कि सुबह से जनाब जो हमारा निज़ाम है वो पार्लियामानी नहीं रहेगा, वो सदारती हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता. इसके लिए आपको एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करनी पड़ेगी जो ये कहेगी कि हम इस मंशूर पर आ रहे हैं कि हम इस निज़ाम को ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो इलेक्ट होगा. सो दिस इज द रीजनिंग इन दैट जजमेंट. नाउ कमिंग टू दैट 2/3 वाला जो मैंने पार्ट की, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, जो कोई ऐसी जो जजमेंट ऑन अ पॉलिटिकल कॉज, दैट इज नॉट रिलेटेड टू 17 मेंबर जजमेंट. वो अगर लेट्स से 63 की ए की या कोई और है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, उसको पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकती है. और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये होता है, और पाकिस्तान के पास भी ये पावर है. देयर इज नथिंग व्हिच स्टॉप्स यू. एट मेस्ट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट स्ट्राइक डाउन हो जाएगी. बल्कि इंडिया में तो एक सुप्रीम कोर्ट के केस में उससे भी अगली जुरिस्डिक्शन दे दी, व्हिच इज द क्यूरेटिव रिव्यू, कि अगर रिव्यू हो गया उसके ऊपर क्यूरेटिव रिव्यू में जा सकते हैं, जो कि अभी इमरान खान साहब ने कोशिश भी की है काजी फाइज ईसा साहब के केस में, जो कि नहीं करना चाहिए. क्यूरेटिव रिव्यू ये है कि उस रिव्यू को क्यूरेट कर सकते हैं, अब आप पोजीशन बेहतर कर सकते हैं. हर इदारे ने एंड पे वही बात है, बैलेंस करना है. ये नहीं कि सुबह आइन वो पार्लियामेंट बैठे और सारे फैसले जो है वो स्ट्राइक डाउन करना शुरू कर दे. बट यस, अगर किसी फैसले का वो समझते हैं कि वो उस मंशा के मुताबिक नहीं है जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था 63A का लेट से या कोई और, तो वो उसको स्ट्राइक डाउन करें. उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, मेरा जाती व्यू है कि उस पर नहीं बोलेगी. हाँ, अगर बुनियादी ढांचे को छेड़ेंगे तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगी, और पार्लियामेंट को खुद भी ये काम नहीं करना चाहिए. And with that, I will beg leave. Thank you very much. It was a wonderful session. And in the end, I would like to once again reiterate कि आप लोगों ने ख़वातीन को भी इंक्लूड किया, हम सारों की भी उस पर माजरत है कि हम उस चीज़ का नहीं मद्देनजर रख सके. But this is something you, वही वाली बात, you evolve with time and we accept our mistake there. But in the end, we came across Noor, who's one of my favorites. So over to Noor and Bakhtavar ji. Thank you. Thank you so much, sir. It was lovely getting in touch and having this conversation. It was the best. Thank you. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़. फैज़ान, आपका सवाल है. तो मेरे ख्याल से उससे पहले वो एजाज का जो सवाल था फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर. Noor, you want to go first? Yeah, but I'm happy to. And then I think मेरा इस पर जरा मुख्तसर जवाब होगा. I think आपका सवाल ये था कि given पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप, हाँ मतलब नॉर्मल हालात में अगर हम फ्लोर क्रॉसिंग में फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और अगर फ्लोर क्रॉसिंग हो भी रही है तो इसमें बुराई क्या है जो हमने बात की. एंड आपने कहा कि पाकिस्तान के लैंडस्केप को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्या ये हक फिर अभी भी क्या जरूरी है, क्या ये हक
रहना चाहिए, रिटेन करना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस को. मुझे लगता है जैसे पंसूटा साहब ने बहुत अच्छी बात की, आई नोटेड इट डाउन, कि ये प्रोसेस भी प्योरीफाई होने वाला है एंड हम इस प्रोसेस को प्योरीफाई होने नहीं दे रहे, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्योरीफाई नहीं होने देते, विच इज वाई पाकिस्तान का लैंडस्केप वो ही रहता है. अगर एंड इट इज अ चिकन वर्सेस चिकन व्हिच केम फर्स्ट, चिकन और द एग वाली सिचुएशन है कि हम सुप्रीम कोर्ट से, या तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहें कि वो अपने पूरे हाथ उठा ले और कहे कि भाई जो पार्लियामेंट ने करना है वो करें, या फिर जिस तरह आप कह रहे हैं लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए, रीजन बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट हर एक बारी इंटरफेयर करे और हर एक बारी प्रोसेस को डिक्टेट करे. वो एक सिचुएशन है एंड वो सिचुएशन, वो एक डिसीजन फिर हम नहीं ले सकेंगे एंड विल स्टिल बी स्टक इन दैट रट. In my opinion, yes, even if Pakistan's landscape is perhaps the worst in the world at this point, this is something that the Supreme Court should not have done because it has increased the dependency that parliamentarians have on it. बेशक पाकिस्तान का जितना मर्जी खराब लैंडस्केप हो, आपने आज सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया कि उन्होंने कहा कि ताहियात नाअहली परमिसिबल है और उसकी बुनियाद पे आर्टिकल 17 की कैसी रीडिंग दे दी, जो कि रीडिंग इज नॉट इवन सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ये लैंडस्केप तो जस्टिफाई नहीं करता है इस बात को. फ्लोर क्रॉसिंग इन एनी सिचुएशन should be allowed. बेशक पाकिस्तान में पार्लियामेंट में जिस तरह के भी हालात हो रहे हैं, it is internally for the parliament to resolve. This is why you have a majority and a minority to be able to hold that parliamentary check. दुनिया में आप ऐसा, ये तो नहीं होता होगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है. पाकिस्तान में फॉर पॉलिटिकल रीजंस फ्लोर क्रॉसिंग हर जगह दुनिया में होती है, बट आप बेस्ट प्रैक्टिसेस से लर्न करते हैं, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्लेक्ट नहीं करते. एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आई थिंक आर्टिकल 63 पे काफी बात हुई थी एंड एक पॉइंट जस्ट आई वांट टू फ्लैग कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं कि सीएनए के वो किसी भी किस्म का प्यूनिटिव मेजर लें, एंड वो प्यूनिटिव मेजर अब उन्होंने पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ दिया कि 100 साल डिसाइड करें, 50 साल डिसाइड करें, 5 साल डिसाइड करें, आपके हाथ में. लेकिन जब ये बात ताहियात नाअहली केस में फ्लैग की गई थी, आई वाज देयर एंड आई रिमेंबर एवरीवन सेड टू द सुप्रीम कोर्ट कि 5 साल मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, वरना तो 63 एक all encompassing sword ban jayegi. And then the Supreme Court said no. So that is what I was saying about consistency. That is what I was saying कि आज आपने एक चीज सोचा कि हम डिसाइड कर देंगे, कल आप सोचो नहीं पार्लियामेंट को डिसाइड कर दो. ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी लैंडस्केप में ऐसा नहीं हो सकता. Bakhtavar, happy for you to take this one. Right. My 2 cents on the issue are that this is a tough question, to be honest. And it often happens in law that you don't have a clear answer to something, right? Or because you have a larger principle which exists at a higher level of abstraction, and the larger principle is that people should be free to vote. And but then when you come down and try and apply that larger principle onto specific facts, i.e., the question that you raised कि हमारी जो historical context है उसके अंदर इस principle को अगर apply किया जाए तो उसके क्या consequences मुरतब होंगे, और whether it is a good idea or not. इसीलिए मेरी नज़र में it's a tough question. It's not something, to me at least, that's crystal clear. But I do want to say a few things on this. One ये कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का प्रॉब्लम है, ये इसको मेरी नज़र में जो चीज़ गवर्न करनी चाहिए वो आपके सोशल नॉर्म्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं. ठीक है, इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू और शुड फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट. इवन सो फॉर इंस्टेंस 1990s से पहले आपके आइन में आर्टिकल 63A नहीं था. देयर वाज अ सोशल नॉर्म अराउंड दिस, राइट? अच्छा, जो नॉर्म जनरेशन का लिटरेचर, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दोज ऑफ यू हु स्टडीड दैट सब्जेक्ट, वो ये है कि सोशल नॉर्म्स इमर्ज करते हैं बेस्ड ऑन सोशल कन्वेंशंस व्हेन ऑल पॉलिटिकल एक्ट, बिल्कुल इस तरह जिस तरह लैंग्वेज इमर्ज करती है. लैंग्वेज की इमर्जेंस में कोई कमांडर नहीं बैठा जो कहता है आज के बाद ऊबर के लफ्ज़ का मतलब ये है, आज के बाद गोइंग का मतलब का लफ्ज़ ये है. लैंग्वेज जनरेट होती है बेस्ड ऑन सोशल कन्वेंशन, एंड देन उसको ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी मिलती है, एंड फिर जाके वो डिक्शनरीज में ऐड होता है. जिस तरह अब ऊबर का लफ्ज़ समझा जाता है ऊबर फॉर टैक्सी, बट आज से 10-15 साल पहले दैट इज नॉट व्हाट इट वाज सपोज्ड टू मीन, राइट? सो a particular norm emerges, and then the social players convene and agree to the meaning of that word, and that's how that meaning emerges. इसी तरह सोशल नॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस भी इमर्ज करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ दुरुस्त है, कि पैसा लेके हमने लेट से दूसरी साइड पे नहीं जाना, या एक्सट्रीनियस रीजंस के लिए हमने डिफेक्ट करके फ्लोर क्रॉस नहीं करना.
سو اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کریں. ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں تھا. 1990s میں آئی تھنک نواز شریف کے دور میں 14th امینڈمنٹ لائی گئی جس کے اندر پہلی بار آرٹیکل 63A انسرٹ ہوا. اس وقت جب انسرٹ ہوا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کسی بھی بل کے لیے بھی even if you're passing an act of parliament you have to follow I think the directions of the party leader. And then subsequently 18ویں ترمیم جب آئی تو اس میں سے وہ شک نکالی گئی اور یہ کہا گیا جو پنسوٹا صاحب بھی جس کو ریفر کر رہے تھے کہ ڈیفیکشن کلوز اب صرف اپلائی کرتا ہے ٹو کانسٹیٹیوشنل بلز, منی بلز اور ٹو ووٹس آف نو کانفیڈنس. تو اس کو محدود کر دیا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ you might start from T0 but eventually as norms emerge you can shift the position based on how things have developed in your country, جو ہمارے ملک میں بھی ہوا. لیکن عدلیہ کو میری نظر میں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی جو آپ کا سوال ہے and as I said it's a tough question because یہ ایک ہماری ہسٹری رہی ہے کہ مداخلت رہی ہے from certain institutions in the state, اور بڑے پولیٹیشینز آج بھی اکثر ٹی وی میں ہم سنتے ہیں گفتگو ہوتی ہے کہ جی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں, یہاں سے اشارہ ہونا ہے تو پھر پارٹیاں چھوڑ کے پولیٹیشینز دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. بالکل غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. سو اس کی نظر میں شاید ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ اینٹی ڈیفیکشن کلوز ضروری ہے بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کنٹرول کریں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہونا ہے. بٹ آلسو تھنک اباؤٹ دا فلپ سائڈ آئی تھنک وچ از واٹ نور اینڈ می آر کنسرنڈ اباؤٹ. اور وہ فلپ سائڈ یہ ہے کہ دین واٹ یو آر اسینشلی ڈوئنگ is that you're giving control of the entire parliamentary process to just one person. So assume for a second کہ آپ کے پاس ایک majority party آ جاتی ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں majority enjoy کرتی ہے. اگر تو ایسے ہے اور اس کی 2/3 majority ہے تو آپ نے کوئی بھی constitutional bill pass کرنے کے لیے صرف ایک بندے کا go ahead چاہیے and that's the party leader. So all the other votes effectively become redundant and what you end up being at the place where you end up is ظفر علی شاہ 2002 جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ مشرف کو کہا کہ آپ کا جو دل چاہے آپ آئین میں ترمیم کر دیں. اب ہم بھی سب یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو آئین ہے یا جو ہمارا دستور ہے اس کے اندر وہ پاورز انشرائنڈ ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے ہمارے سے لے کر گئے. سو ان سب کی رائے کو رد کر دینا اور اس کو اوور رائڈ کر دینا ود دی ڈکٹیشن اور ود یو نو دا ڈائریکشن آف دا پارٹی لیڈر, یہ بھی ایک بہت questionable چیز ہے. So on a balance of probabilities, while this concern is also genuine with respect to interference by institutions and telling politicians which party to join and when to jump the ship, that's of course a big concern. But at the same time, I think میرے لیے on a balance یہ شاید تھوڑا زیادہ بڑا concern ہے کہ I don't want party leaders at least to become dictatorial because we also have a tendency of autocratic leaders within the party system also. So no one will question Nawaz Sharif in PMLN, no one will question Asif Ali Zardari in People's Party, no one questions Imran Khan in PTI. Unka lafz harf aakhir hai. So usi harf aakhir ko ain mein bhi marboot kar dena I think is something that's troubling. So that's my view on that. Shukriya Bakhtawar Saab. Now we'll move on to Hazan followed by Hayat Lak. Yeah, can you guys hear me? Yes. So I have two questions. Firstly, thank you so much for arranging such a good session. But the question that I have firstly is کہ separation of power کے اوپر کافی بات ہو رہی تھی and دو constitution میں اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ہر کسی کی پاور ہے. But you see time and time again certain institutions overstepping their role جو ان کا constitution میں لکھا ہے. So how can you like really bring in effect کہ اچھا اگر آپ کا یہ رول ہے تو یہ رول رہے گا. Number two, how can one be sure کہ if a judiciary is really being independent, considering the fact کہ ہر جج یا ہر جو lawyer ہوتا ہے وہ constitution کو مختلف طریقے سے interpret کرتا ہے. So interpretation can differ from person to person and sometimes it's really hard to sort of like understand whether the judiciary is being independent or is it siding with a certain political position. I hope I have phrased my questions coherently perhaps. Either of you can take it. Ms. Noor, if you want to go ahead first. No, I think Bakhtawar is the public law specialist also. So I would defer to Bakhtawar.
I'm not on this point. I think I'll take your second question first regarding judicial independence. Because there's always this tendency to look at judicial decisions from a partisan lens. And it seems, particularly with respect to the two decisions that we've been discussing so far, okay, everyone has been looking at them through, partisan lens, which is unfortunate. Hona nahi chahiye. But the thing, the interesting thing is that my view is you can never be sure about judicial independence, and this is unfortunately or fortunately how the judiciary is structured, because you also have to understand it's embedded in a social structure, right? Iske upar Yasir Quraishi has written a wonderful journal article. It's a research paper called Why Judges Defy Dictators, and uske andar he comes up with an audience based framework ke there are times when there are different views as to how judges decide cases. Richard Posner wrote this book कि जी judicial incentives बड़े important हैं, retirement age क्या है, post retirement benefits क्या हैं. तो कुछ countries में देखा गया कि जूं judges जो हैं they get closer to their retirement age, they start favoring the government because they expect कि उनको post retirement किसी authority का head लगा दिया जाएगा, जो हमारे यहाँ भी बहुत दफा होता है, right? But Yasir Quraishi's article is interesting because he just basically says that there's a particular audience in which judges are looking for self-esteem and repute, right? So अगर वो घर वाली उनको कहने लग जाएं या उनके दोस्त अहबाब कहने लग जाएं यार ये आपने क्या फैसला किया है, तो that will have an effect on how judicial decision making takes place. And he comes up with he's a data set from I think 2002 to 2007 regarding how the decisions of the judiciary changed during that point in time. So the short answer to that question is that judicial independence is an ideal. You can probably never attain that because it's an utopian goal, right? But jitna zyada aap kar sakein utna behtar hai, but because judges are also human, therefore it's not practically possible to achieve 100% of that independence that you would ideally aspire to as a state. I hope I've answered your question. एक और भी शायद आपका question था regarding, I've forgotten the first question actually. Thank you so much for answering that question. The first question was regarding the separation of power के अगर constitution में उसके ऊपर लिखा हुआ है, but time and time you see certain institutions overstepping. Okay. याद आ गया. देखो, to be honest, I don't think I'm qualified to comment on that because I haven't read up on that literature. But my intuition is that you need democratic continuity and you need time in order to do that. So I'll give you an example. When I talk to my elders, they say कि अब जिस तरह से एक particular institution के साथ के ऊपर तनकीद होती है हमारे ज़माने में, it was unthinkable, right? So see what has happened despite this constitutional crisis. See the kind of norm that has emerged. Like इससे पहले इस incident से 2022 से पहले you had the PMLN, the People's Party saying vote को इज्जत दो, constantly calling out a particular state institution saying कि ये interfere करते हैं in the election, ये responsible हैं for bringing the PTI to power. Now once the PTI is out of power, so there's an entire different set of electorate that is now saying the same thing, right? So you have this situation where a consensus appears to be emerging. Now इस point पे आपके political leaders का role बहुत important है कि वो उस consensus को मजीद crystallize करते हैं या again दोबारा से जाके उनकी गोद में बैठते हैं, जिस तरह के नज़र आ रहा है कि शायद अब जो मौजूदा हुकूमत है वो दोबारा उसी तरफ रुख कर रही है कि हमें इशारा करें कि हमने क्या करना है, right? So this can only take place with time. Over the last few months, I've become optimistic कि शायद going forward ये चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएं because there is now an emerging consensus and convention with respect to how certain state institutions have to stay within their constitutional limits. But you never know in Pakistan. आज आप कुछ कहते हैं कल कुछ और हो जाता है, so it's hard to predict. No, I just want to add to Bakhtawar's point on the second question, independence, judicial independence के बारे में. And when judges, when this become a defy dictators is a great paper, you're right, one of my favorites also. And I think I will just go one step ahead to say कि जब
जुडिशरी एक एक्टिविस्ट कोर्ट बन जाती है. एक्टिविस्ट कोर्ट वो कोर्ट होती है जो ties into the first point I was making on judicialization of politics. जब वो अपने जुमरे से बाहर निकल के ऐसे फैसले करती है जो नेशनल आइडेंटिटी पे तज्जिया करती है, जब एक कोर्ट और अपने इख्तियार में ले लेती है बहुत से ऐसे फैसले पार्लियामान के होते हैं, तो उसको जब एक जुडिशरी पोलिटिसाइज हो जाती है और एक्टिविज्म की तरफ चली जाती है, तो मेरी नजर में ये सारी चीजें जो बख्तावर ने हाईलाइट की हैं, द आइडिया ऑफ अबाउट रिप्यूट, अबाउट द असर्टिवनेस दैट अ जज शोज, वो ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती हैं. बिकॉज जब आपने अपने हाथ में इतना कुछ ले लिया होता है कि जहाँ पे आपने हर मुल्क का फैसला लेना है, तो एक आप पे जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप उसको असर्ट भी ज्यादा करते हैं. और ये गलती जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस की है, जो कि आज हम जिसका एक बहुत सिवियर लैक देखते हैं, वो गलती मैं आज सिर्फ एक इंडिविजुअल जज की तरफ नहीं करूंगी, और ना मैं कहूंगी कि नहीं ये एक जज मुझे लगता है इंडिपेंडेंट नहीं है. मेरी नजर में आपकी अदालत ही पूरी, क्योंकि इतनी हिस्टोरिकली एक्टिविस्ट रह चुकी हुई है कि अब उससे टर्न बैक करना और वो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना, उनसे एक एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो चुकी है कि वो इतनी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे. हिस्टोरिकली अब तो मैंने देखा है कि उस जज को जो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करता है, बकायदा गालियां पड़ती कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो करता ही नहीं कुछ. जबकि जजेस जो अब अपने निकल के अपने जुमरे से बाहर निकल के फैसले करते हैं, उनको लॉर्ड किया जाता है कि नहीं देखा इन्होंने तो वो काम किया जो हम चाह रहे थे. एक एक्सपेक्टेशन ही आपने खत्म कर दी है. एक इंडिपेंडेंस, एक पॉपुलिस्ट, एक आप इमेजिन करें कि दीज आर इंडिविजुअल्स जिनको इलेक्ट नहीं किया जाता, जो कि आपके एक अनइलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जो कि पब्लिक के मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं. वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक्टिविस्ट कोर्ट के थ्रू जब एक्ट करते हैं, so this is something that will inevitably happen. You will inevitably have a judiciary that may not be the most independent judiciary, because they have their own interests also to look after. Regrettably, that is something that is happening in Pakistan. Regrettably, I say this at the expense of being charged with contempt of court. But that being said, I would also say that the separation of powers wali baat hai, how we can ensure that is that there is no way of ensuring that, unless if every institution decides that they will step back from a matter that does not concern them. For example, principles of public policy आपके जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि these are not justiciable, इस पे नहीं फैसला किया जाता, लेकिन आज भी कोर्ट बैठती है, कोर्ट इस पे फैसला करती है. स्कूल में फॉर एग्जाम्पल, यस होली कुरान पढ़ाना चाहिए बिल्कुल, बट ये एग्जीक्यूटिव का काम है. सुप्रीम अगर हाई कोर्ट आके फैसला करती है, हाई कोर्ट का काम नहीं है. आज लोग बेशक उस लाइन को ब्लर करने की कोशिश करें, इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है. There is no one who can undo this apart from these institutions themselves. बहुत शुक्रिया दोनों का इस सवाल का जवाब देने के लिए. एक बस मेरा आखिरी पर्सनल एक सवाल है, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स के सवाल खत्म हो गए. इट्स जस्ट दैट I've noticed around us, how do we, like, one question is that how do we change the discourse around the idea of constitution? क्योंकि अभी जब हमारा political discourse हो रहा होता है, तो when constitution violation की term is thrown up against terms like corruption, तो लोगों के लिए, common man के लिए corruption is like a more tangible kind of thing, and they say that's a kind of a bigger crime. So constitution violation चलो होती रही है, डेप्यूटी स्पीकर ने रूलिंग दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इसका इम्पैक्ट नहीं समझते. सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर द मैसेज आउट देयर, हाउ डू वी चेंज द डिस्कोर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि दीस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हिस्टोरिकली इन्होंने बहुत इशू क्रिएट किया हमारे मुल्क में, और इनके एक्चुअली बहुत टेंजिबल इम्पैक्ट्स फील होते हैं. सो एज लॉयर्स व्हाट रोल कैन वी प्ले? I'll answer this very quickly and then maybe Noor can add on to it. मेरा तो इस पर बड़ा क्लियर व्यू है, वो ये कि हमें अपना आइन पढ़ाना चाहिए स्कूलों कॉलेजों में, समझाना चाहिए कि उसका मकसद क्या है. अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम एचसन, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, लॉ बाहर से किया. जब तक वकालत में नहीं आया तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा आइन और मेरा दस्तूर क्या कहता है, राइट. सो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता. बाय कॉन्ट्रास्ट, इफ़ यू गो टू स्पीक टू एनी US सिटीजन, उनके हाई स्कूल में और स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है, I'm probably forgetting the name, but उसके अंदर उनको बेसिकली पूरा सिस्टम बताया जाता है कि भाई हमारे मुल्क में एक सेनेट है, वो इस तरह इलेक्ट होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, प्रेसिडेंट का ये रोल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमारा जो अनफॉर्चुनेटली पाक स्टडीज़ का कोर्स है या जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसके अंदर इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली जाती. तो मेरा ख्याल है जब तक आप उसको पढ़ाए ना, लोगों को समझ ना आए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है,
اور یہ آپ کو بہت ارلی اسٹیج سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ میس اپیل ہو اس آئیڈیا کی، اور یہ صرف ہم جیسے لوگ جو کالے کوٹ اور کالی ٹائی پہن کے دفتر میں بیٹھتے ہیں یہ ان کا کام نہ ہو اس کو پروٹیکٹ کرنا، بٹ جو عام عوام ہے ان کو بھی سمجھ آئے کہ اس کانسٹیٹیوشن کا اور اس دستور کا ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اس ڈاکیومنٹ کی. ٹھیک ہے، آئی تھنک ود دیٹ we'll wrap up. بہت شکریہ Mr. Bakhtavar and Ms. Noor for taking out the time, and we apologize if we ran over the time thoda sa, but thank you for such a fruitful discussion. Thank you. And thank you to everyone for attending as well. Yeah, thank you to the audience for taking out the time. Take care and Allah Hafiz. Thanks everyone. Thanks. Hafiz.